Good morning, students. I, Mrs. Pratibha Sharma, welcome you all once again to my English classes. Students, today we are going to study the enemy chapter from your textbook, Vistas. It is written by Perilous Burke. This chapter, the enemy, is set at the time of the Second World War. It is a heart-rending portrayal of the conflict between men's head and his heart. An American sailor is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a eminent Japanese surgeon and scientist, Dr. Sadao Hoki. Sadao is torn between his duty as a doctor and as a citizen of Japan. Now, let's talk something about the author of this chapter, Pearl S. Buck. She was an American writer and novelist. As the daughter of missionaries, Buck spent most of her life before 1934 in Xinjiang in China. Her novel, The Good Earth, was the best selling fiction book in the United States in 1931 and 1932 and won the Pulitzer Award in 1932. She was also the fourth female to win a Nobel Prize for Literature. She was born on 26 June 1892 and died on 6 March 1973. Her famous works are East Wind, West Wind, The Dragon Seed, The Water Buffalo Children, The Christmas Ghost, China, As I See It, and many more to say. So, students, let's continue with the chapter. So, you all can see page number 24 in your book Vistas. The chapter is The Enemy. It is the time of the World War. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over the army as a patriot? Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot of the Japanese coast where, as a little boy, he had often played. The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines. As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare feet, as he had seen men to do in the South Seas when they climbed for coconuts. His father had taken him often to the islands of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side, "Those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan. Where shall we step for them?" Sadao had asked seriously. "Who knows?" his father had answered. "Who can limit our future? It depends on what we make it." So now, students, this chapter is about a doctor whose name is Dr. Sadao Hoki. Okay, he was a surgeon also and a scientist also. So, and the time was of the World War. The World War, Second World War was going on between America and Japan. The story is set in these two countries.
सो एन अमेरिकन प्रिजनर, प्रिजनर कौन होता है? जो कैदी होते हैं, ठीक है। तो एक अमेरिकन कैदी जो था वो युद्ध के समय सी में बहता हुआ जो था एक जापानीज डॉक्टर के डोर स्टेप पे पहुंचता है। डोर स्टेप पे पहुंचता है मीन्स कि जो डॉक्टर सडाओ हॉकी थे उनका जो मकान था, उनका जो रेसिडेंस था, उनका जो होम था, वो एक बीच के पास था। तो बीच के पास उनका हाउस था। वहीं पे बहते हुए एक अमेरिकन प्रिजनर जो कैदी था वो बहते हुए वहाँ पहुँचता है। एंड जब वो वहाँ पहुँचा तो ही वॉज इन अ डाइंग स्टेट, वो एक डाइंग स्टेट में था, ठीक है। मतलब उसकी हालत जो थी वो बिल्कुल ही पैथेटिक थी। ये नहीं पता था कि ये जिएगा भी या नहीं जिएगा। अब उसको देख के डॉक्टर सडाओ हॉकी जो थे, ही वॉज इन अ डिलेमा, he was in a confused state whether he should save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot. अब उनके मन में क्या डिलेमा था कि वो अपने डॉक्टर की ड्यूटी को कंप्लीट करें या एज अ पैट्रियट, देशभक्त होने के नाते, पैट्रियट मीन्स देशभक्त, देशभक्त होने के नाते उस कैदी को जो कि एक डाइंग स्टेट में था उसको अपने देश की सेना को, अपने देश की जो पुलिस है उसको हैंड ओवर कर दे। तो ये चैप्टर जो है इसी कश्मकश पे बेस्ड है। क्या डॉक्टर सडाओ उस प्रिजनर की जो अमेरिका से बहता हुआ, समुद्र से, सी से बहता हुआ उनके डोर स्टेप पे आया है, उसे बचाएंगे या उसको एज अ पैट्रियट होने के नाते अपने देश की सेना को सौंप देंगे। सो लेट्स सी द चैप्टर डिटेल वाइज। डॉक्टर सडाओ हॉकी हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट। उनका मकान जो था वो जापानीज कोस्ट पे था। वेयर एज ए लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड, जब वो छोटे बच्चे थे वो वहाँ उस बीच पे बहुत ज़्यादा खेलते थे। द लो स्क्वेयर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच। उनका जो हाउस था वो स्टोन से बना हुआ था एंड उनके हाउस के पास ही जो समुद्र में बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, वो भी वहाँ पे लगे हुए थे। एंड इट वॉज आउटलाइंड विथ पाइन्स, पाइन जो होते हैं पेड़ होते हैं, तो उनके हाउस के चारों तरफ जो थे वो पाइन ट्रीज लगे हुए थे। एज अ बॉय सडाओ हैड क्लाइम्ब द पाइन्स, जब वो एक बच्चे थे, डॉक्टर सडाओ बच्चे थे, एज अ बॉय वो उस पर चढ़ जाते थे। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, बेयर फीट मतलब बिना किसी जूते चप्पल के वो उस पर चढ़ जाते थे। एज ही हैड सीन मेन टू डू इन साउथ सीज व्हेन दे क्लाइंब फॉर कोकोनट्स, ऐसा उन्होंने कब सीखा? जब उन्होंने साउथ सीज में, यानी कि जो दक्षिणी समुद्र है जो, जैसे कि, तो उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोकोनट की ट्रीज होती हैं, तो लोग जो है कोकोनट को तोड़ने के लिए नंगे पांव पेड़ पे चढ़ जाते हैं। तो उनको ये इंस्पिरेशन जो है उन लोगों से मिली, तो वो भी बेयरफुट उस पे चढ़ जाते थे पेड़ों पे, पाइन ट्रीज पे। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दोज सीज, और उनके पापा ने, उनके फादर ने उनको जो है मेनी टाइम्स उनको आइलैंड्स पे लेके गए हैं। आइलैंड्स क्या होता है? इट्स अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड विच इज कवर्ड बाय ऑल अराउंड बाय वाटर, तो वहाँ लेके गए जाते थे। दोज आइलैंड्स यॉन्डर, यॉन्डर मीन्स एट सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड ओवर देयर, यानी कि वहाँ के जो आइलैंड्स थे, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। और वहाँ वो इतने खूबसूरत आइलैंड्स थे कि ऐसा लगता था मानो जापान का आने वाला फ्यूचर वहीं बसेगा। वेयर शेल वी स्टेप फॉर देम, सडाओ हैड आस्क्ड सीरियसली। तब सडाओ अपने फादर से पूछते थे, वेयर शेल वी स्टेप फ्रॉम देम, कि हम यहाँ पे कैसे पहुँचेंगे। हु नोज, हिज फादर हैड आंसर्ड, वो कहते पता नहीं कैसे।
हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर को कौन लिमिटेशंस लगा सकता है? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, यानी कि हम जैसा चाहते हैं, हम जैसा सोचते हैं, हम अपने भविष्य को वैसा बना सकते हैं। इट इज़ इन आवर हैंड्स टू शेप आवर फ्यूचर, यानी कि जैसा हम चाहेंगे वैसा हम बन जाएंगे या हम वैसा बना के दिखा सकते हैं। ऐसा डॉक्टर सडाओ के फादर जो थे उनको कहते थे, ऐसी उनको वो मोटिवेशन देते थे, ऐसी उनको शिक्षा देते थे। सडाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड। अब डॉक्टर सडाओ ने, उस समय तो खैर वो डॉक्टर नहीं थे, जब बच्चे थे तब उन्होंने अपने फादर की इन बातों को अपने दिमाग में बिठा लिया था। एंड ही यूज्ड टू डू what his father used to say him. His father who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. लेकिन उनकी शिक्षा तो उन्होंने सीखी, अपने पापा से उन्होंने ये शिक्षा तो ली, लेकिन उनके पापा ने कभी उनके संग ना तो मजाक किया, ना ही कभी उनके संग खेले। जैसे कि यूजली जो फादर होते हैं वो अपने बच्चों के संग टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनके फादर ने उनके संग कोई भी ऐसा टाइम स्पेंड नहीं किया जो कि हंसी मजाक से रिलेटेड था। हाँ, उनको अच्छी शिक्षा देते थे, अच्छी नॉलेज देते थे। एंड हु स्पेंट इन्फिनाइट पेन्स अपॉन हिम, और उन्होंने अपने उस बच्ची की एजुकेशन के लिए, उसको पालने पोसने के लिए बहुत पेन्स लिए, बिकॉज डॉक्टर सडाओ जो थे अपने पापा के इकलौते बेटे थे। सडाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, और सडाओ को भी ये मालूम था कि उनकी जो एजुकेशन है दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ हिज फादर्स लाइफ। उनकी फादर की लाइफ का जो मेन एम है वो डॉक्टर सडाओ की एजुकेशन ही है। फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine. और जब वो 22 years के हुए, उनके पापा ने उनको उठा के जापान से अमेरिका भेज दिया। क्यों भेज दिया? जस्ट टू स्टडी द मेडिसिन एंड द नॉलेज ऑफ सर्जरी, बिकॉज उनके पापा उनको एक सर्जन बनाना चाहते थे, एक डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उसको वहाँ अमेरिका भेज दिया। ही हैड कम बैक एट 30, और जब वो 30 ईयर्स के हो गए, यानी कि 22 ईयर्स में वो गए एंड 30 ईयर्स की एज में वो वापस आए। एंड बिफोर हिज फादर डाइड he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. But उनके फादर ने अपनी डेथ से पहले अपने बेटे को फेमस बनते हुए देखा, ना केवल एज एक सर्जन की जैसे बल्कि एक साइंटिस्ट के भी तौर पे उन्होंने अपने बेटे को फेमस होते हुए देखा। Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. He had not been sent abroad with the troops. So, also he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility, Sadao was being kept in Japan. यानी कि अब उनके फादर की जब डेथ हो जाती है और डॉक्टर सडाओ एक फेमस सर्जन प्लस एक फेमस साइंटिस्ट बन चुके होते हैं, तब वहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग होती है। लेकिन वहाँ के जो ओल्ड जनरल थे, आर्मी के जो ओल्ड जनरल थे, उन्होंने उनको अपनी फौज के साथ नहीं भेजा। उन्होंने डॉक्टर सडाओ को वहीं जापान में रखा, क्योंकि वो जो थे बहुत ज़्यादा उनको मानते थे और वो चाहते थे कि डॉक्टर सडाओ जो हैं उनके साथ जापान में ही रहें, बिकॉज ही वॉज बीइंग मेडिकली ट्रीटेड बाय हिम।